Hello students, welcome back to my channel. Today we will be doing chapter number 1.2, question number 4, which is the most important part of this chapter, and straight away be prepared to get 3 marks. So, in our last video we have understood what is a solution. Solution of a quadratic equation का मतलब बेटा कुछ नहीं, x का वैल्यू कितना होगा. That is again called roots of a quadratic equation. So quickly, roots बेटा क्या होता है? कोई भी quadratic equation का solution. Now I have given here 3 equations. फिर से आप पूछोगे कौन सा quadratic equation है? No. I know this is the quadratic equation because the highest power of the variable x is 2, then 1, then 0. Now my question is, what is this? Here the highest power of x, the variable is 1, here the highest power of variable is 3. So when the highest power of variable is 1, it is called linear equation. Linear equation. And when the highest power is 3, it is called cubic equation. And when the highest power is 2, you all know it is a quadratic equation. Now why I am telling you this? Because beta, in a linear equation, when the highest power of the variable is 1, that means, keep this in mind, that means x का कितना वैल्यू आएगा? सिर्फ एक आएगा, 1, because the highest power of variable is 1. Now in quadratic equation, if I have to ask you what is the highest power of x, that is 2, so we will be having 2 values of x. That means quadratic equation में कितने रूट्स निकलेंगे बेटा? 2 रूट्स. So there will be 2 रूट्स. Means 2 सॉल्यूशन आएंगे इसका. और एक क्यूबिक इक्वेशन में फिर कितना आना चाहिए? Accordingly, so yes, in cubic equation there will be 3 values of x. So once again, in quadratic equation the value of x will be 2. So there will be 2 roots. Yeah, 2 solutions. Now we will be understanding how to factorize a quadratic equation to get 2 roots of a quadratic equation. So now we will be understanding how we can do factorization. Even we call it to be middle term splitting method. So factorization method or middle term splitting method, both are the same. And let me tell you, apart from West Bengal board, state board students, this chapter is very important for ICSE as well as CBSE because they also have to do factorization. So this is for all of you. Now when we talk about factorization, what are the steps to factorize any quadratic equation? The first step is to simplify the given equation in standard quadratic equation form. That is ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. So first, this is the step. We have to simplify the given equation in standard quadratic equation. Here I have taken some examples. You can see none of these are in standard form. क्यों बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू के साइड में क्या होता है? 0 होता है और ये अरेंज्ड रहता है. Highest power of x will be first, then will be x, then will be the constant number. So first step, simplify the given equation in standard quadratic equation. बेटा साथ में लिखते चलो क्योंकि आज बहुत काम करना है. That video is going to be lengthy, so you don't have to rewind every time. So keep writing the page. This is the first step. So we will see the first step and understand the first step. Then we can do the splitting of the middle term. That will also not take much time. So let's start. So here is the first question. Now 3y square minus 20 equal to 160 minus 2y square. What did I tell you? Standard form means this side में 0 आना चाहिए. So we have to transport all the elements from this side to this side. So first here it is 3y square.
बेटा वाई स्क्वायर के बगल में वाई स्क्वायर को लगाना है, इधर -2y है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा प्लस, सो प्लस 2y स्क्वायर। सी हियर देयर इज -20 मींस कांस्टेंट टर्म है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका आगे क्या लगाए बेटा प्लस, सो प्लस 160 को जब इस साइड लाएंगे ये बन जाएगा -160 एंड here both the elements have been transformed, so nothing is left, so 0। अब बेटा फटाफट 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो 5y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 160 प्लस 20 इज 180, और बड़े में बेटा माइनस का साइन है, सो माइनस। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग एडिशन सब्सट्रैक्शन बिकॉज़ वी जनरली मेक सम सिली मिस्टेक इन दिस सिंबल्स। अब बेटा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? सर लग तो रहा है, नो बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन। कॉमन अगर दोनों में है उसको निकाल देंगे, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो सर कॉमन कैसे निकालते हैं बेटा? एक बात याद रखना, इन दिस एंटायर चैप्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग को बहुत सारे कॉमन्स निकाल के क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, सो यू हैव टू बी परफेक्टली ऑलराइट विद टेकिंग आउट द कॉमन। अगर आपको समझ में नहीं आता, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला thumb rule of taking common, it comes out from the multiplication। तो यहां पर देखो बेटा 5 into y स्क्वायर है माइनस क्या 185 के टेबल में आता है सर कितना 5 into कितना होता है 180, 5 into से 36, वेरी गुड, इज 180। तो यहां पर हम देख रहे हैं भी इधर भी 5 है इधर भी 5 है, सो नाउ वी कैन टेक आउट कॉमन। यहां दोनों में से मैं अगर 5 निकाल दूं तो बच्चों यहां पर क्या बचा y स्क्वायर माइनस का साइन माइनस, यहां से बेटा 5 निकल गया तो कितना बचा 36। तो ये बात याद रखना, कॉमन हमेशा मल्टीप्लिकेशन से निकलता है। अभी मैं आप लोगों को बहुत तोड़ के दिखा रहा हूं, बट व्हेन वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज, व्हेन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस, दैट टाइम आई विल नॉट बी सो सिंपल। सो बेटा अब ये 5 इनटू है ये पूरे के साथ, इनटू वाले को अगर हम उस साइड ले जाए तो बेटा क्या हो जाता है ये डिवाइड, सो y स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5। कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है बेटा 0। ऑलवेज रिमेंबर इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0 the answer will be, क्योंकि 5 zeros are 0, 100 zeros are 0, 1000 zeros are 0, so we will get a 0. So what is the standard form? Y square minus 36 equal to 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बेटा ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, हम लोग बाजू में लिखते चले जाते हैं। क्यों लिखते चले जाते हैं थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा बच्चों। y square minus 36 equal to 0 is the standard form। Now let's move on to the next question। Now look at question number 2। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट को हम लोग को खोलना है। ब्रैकेट कैसे खुलेगा बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहां पर a कितना है 2x, b कितना है 1। सो जहां जहां पर a है वहां पर 2x लगा दो, जहां पर b है वहां पर a 1 लगा दो एंड यू सॉल्व इट। सो पहला है a स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2 into a is 2x into b is 1 plus b square that is 1 square। ये अब एक्सपेंड हो गया। अभी नाउ सेकेंड वन, बीच में प्लस का साइन प्लस a square means x square plus 2 into a into b plus b square equal to 6x plus 47। now now 2x होल स्क्वायर मींस 2 का भी स्क्वायर है x का भी स्क्वायर है, तो बी वेरी केयरफुल। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, सो 4x स्क्वायर प्लस 2 2 is 4, 4 into x 4x, 4x into 1 4x, 4x plus 1 का स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 equal to 6x plus 47। now x स्क्वायर को दोनों प्लस है तो प्लस 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 होता है बेटा 4 प्लस 1x, खाली का मतलब बताया था 1, तो 4 प्लस 1 इज 5x स्क्वायर। लाइकवाइज 4x एंड 2x प्लस 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 4 प्लस 2 6, सो 6x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 equal to 6x plus 47। now we have to transport these two numbers this side।
इधर बेटा 5x², इधर कोई x² है नहीं है। नेक्स्ट इज प्लस 6x, x है प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस 6x प्लस इधर 2 है 47, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 47। अब दोनों इधर आ गए तो कितने बचे, इधर कुछ भी नहीं, सो 0। सो फाइनली इट विल बी 5x², 6x minus 6x is 0 प्लस, अब देखो बेटा प्लस माइनस माइनस, 47 में से 2 किया कितना बचा 45, लेकिन बड़े में माइनस का साइन इसलिए माइनस। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग एडिशन सब्सट्रैक्शन, बिकॉज़ जल्दबाजी में हम लोग साइन का गलती कर बैठते हैं। सो नाउ इज इट द स्टैंडर्ड फॉर्म? नो सर, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन। कॉमन मैंने बेटा क्या बताया था आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन से निकलता है 45 5 के टेबल में आता है सर 5 9 जो 45 होता है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, दोनों में से 5 5 कॉमन निकाल लो। 5 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा इधर x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी 5 इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो बेटा कितना 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, व्हाट डिड आई से इज 0, सो इधर 0 हो जाएगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेट्स क्विकली राइट इट देयर। So this is question number 3. Let's quickly do, क्या करना है बेटा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर पूरा को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1, पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेट्स डू इट। x पहले मल्टीप्लाई होगा x -9 के साथ, फिर -7 है, साइन का ध्यान रखना बेटा, -7 will be multiplied by x -9 equal to 195 this side, we have to write it as it is. Now x into x, you all know x into x power sum, बेस सेम होने से पावर प्लस हो जाता है, भूलना मत बेटा। सो x² माइनस 9 into x 9x, न्यूमेरिक को पहले लिखते हैं, फिर माइनस 7x, फिर माइनस माइनस प्लस, ये बात ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, 9 7 जा 63 इक्वल टू 195। सो नाउ x² माइनस माइनस बेटा क्या होता है प्लस होता है, तो 9 प्लस 7 कितना होगा 16x होगा, बड़े में क्या साइन माइनस, अभी प्लस 63 इधर है, इसको ये प्लस है कांस्टेंट के बगल में लाएंगे 195 इक्वल टू 0। सो नाउ x² माइनस 16x प्लस माइनस माइनस होगा, सो 195 माइनस 63 इज हाउ मच 132। और इसमें बड़े में क्या साइन है बेटा माइनस का, तो माइनस इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स क्विकली राइट देयर x² माइनस 16x माइनस 132 इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा इधर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस, अगर ये पूरा x प्लस 2 या से x² माइनस 3 इक्वल टू सम होता है x by 3, तब हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस पूरे के नीचे डिवाइडेड बाय का साइन है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए पूरे के बीच में नहीं है, सिर्फ सेकेंड टर्म के नीचे डिवाइड, तो हम लोग को पूरे में लाना है। पूरे में कैसे लाना है, सबसे पहले हम लोग को लेट्स प्रिज्यूम दिस इज 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है हमेशा बाय डिफॉल्ट। सो 1 और x का एलसीएम बेटा कितना होता है x होता है, सो 1 डिवाइडेड बाय x, 1 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो उतना ही रहता है, x into 3x, 3x into x कितना होगा, x into x² सो 3x², सो 3x², फिर माइनस माइनस x डिवाइडेड बाय x, 1 into 24 24 इक्वल टू x by 3। अभी देखो बेटा होल डिवाइडेड बाय के साइन दोनों साइड है, सो नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, सो 3x² माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू x इंटू x। सो देखिए बेटा 3 3 इज 9x² माइनस 3 इंटू 24 दैट इज 72 इक्वल टू x²। अब क्या करेंगे बच्चों, अब x² को हम लोग को इस साइड ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इधर पहले से 9x² है, x² प्लस है, इधर आके बेटा क्या बन जाएगा माइनस x² और माइनस 72, इधर से सब इधर आ गए तो नथिंग इज लेफ्ट 0।
अब 9x² से x² गया तो बेटा कितना बचा 8x², बड़े में क्या साइन प्लस, तो इसलिए आंसर में प्लस लगेगा सर, -72 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, होल्ड ऑन सर, लेट मी चेक कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। 8 के टेबल में 72 आता है सर, 8x² माइनस 8 into 9 is 72, 72 की जगह हम लोग 8 into 9 रख सकते हैं। तो अभी इसमें से देखिए 8 कॉमन आ रहा है, 8 को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो बच्चों क्या बचा, x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0, सो आंसर इज x² माइनस 9 इक्वल टू 0। लेट्स क्विकली राइट दिस इज x² minus 9 equal to 0. Move on to question number 5. तो this is question number 5. Again ये पूरा एक डिवाइडेड बाय का साइन नहीं है, सो हम लोग पहले एलसीएम लेके इसको रिजॉल्व करेंगे। 3 और x का एलसीएम कितना होता है बेटा, 3 1 जा 3 और x 1 जा x, सो 3 into x 3x, राइट। अभी 3x को डिवाइड करना है 3 से, so 3 3 कट, x बच गया, x into x is x² प्लस, अब 3x को डिवाइड करो बेटा x से, देखो x x कट गया, 3 बचा, 3 into 3 9 इक्वल टू 15 by x। नाउ यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सब के नीचे डिवाइड बाय का साइन है, सो x² plus 9 into x, x² plus 9 into x इक्वल टू 3x into 15। तो बेटा x into x² कितना होता है, x³ प्लस x into 9 9x इक्वल टू 3 into 15 45x, राइट। अब इसको हम लोग इधर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, तो x³ प्लस 9x इधर पहले से है, x के बगल में x आ जाएगा, ये प्लस इधर आके बेटा माइनस हो गया, लेकिन क्या सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन निकला, होल्ड ऑन, अभी तक कहानी बाकी है। सो ये बेटा क्या हो जाएगा, x³ प्लस माइनस इज माइनस, सो 45 माइनस 9 कितना होगा बेटा 36 इक्वल टू 36x सॉरी इक्वल टू 0। नाउ यू टेल मी इज एनीथिंग कॉमन इन दीस टू। देखो बेटा x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस अभी मैं बस आप लोग बच्चों की तरह इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई आगे चल के परेशानी ना हो कॉमन निकालने में। अब देखो x³ को मैं क्या लिख रहा हूं, x into x² लिख सकता हूं, क्योंकि x into x² मतलब बेस सेम, तो पावर प्लस, तो ये और ये सेम है, तो मैंने इसको लिखा x into x² माइनस 36x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों कॉमन निकल गया, तो बेटा बचा कितना, इधर बचा x² और इधर बचा माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x इधर मल्टीप्लाई होगा, जाके डिवाइड होगा, कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है इट बिकम्स 0, सो व्हाट विल बी द आंसर, x² minus 36 equal to 0. Let's quickly write there. Move on to question number 6. So this is question number 6. Again we have to do the same thing. ये बेटा एक लाइन नहीं है, एक डिवीजन का साइन नहीं है, so we will take the LCM. 1 और x का LCM कितना होता है बेटा, x होता है 1 divided by x is x, x into 10, x is 10x square, 10x into x, इसके सामने 1 है, 10 1 10 और x into x बेस सेम तो पावर प्लस। ठीक है बच्चों, ये सब छोटी मोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इतना इलाबोरेटली आप लोगों को समझा रहा हूं। सो दिस माइनस का साइन, माइनस x डिवाइडेड बाय x इज 1, 1 into 1 is 1 इक्वल टू 3, 3 के नीचे बेटा क्या पकड़ सकते हैं हम लोग 1। सो नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, सो 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 into x 3x। अब 10x स्क्वायर इधर है, ये 3x को हम लोग कहाँ लाएंगे, x स्क्वायर के बगल में 3x, इधर प्लस है, इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस 1 एक है, इधर से सब इधर चलेगा, 0 बचा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। लेट्स क्विकली राइट दैट। So this is question number 7. Actually what we are trying to do from these 9 questions, we are trying to do the first step, that is
सॉल्विंग अरेंजिंग द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सबको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन। तो बेटा यहां पर क्या है, एक लाइन नहीं है, सो इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल के देख लेते हैं। यहां पर पहले x से डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, x into x स्क्वायर होता है ना, तो x कट गया, एक x बच गया। सो x डिवाइडेड बाय x 1 और 1 पहले से ही है, और x डिवाइडेड बाय x 1 1 1, तो सब 1 आ गए। x into x इज x स्क्वायर इज द एलसीएम। सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कितना होता है, 1 1 into 2 2 माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एज आई टोल्ड यू x into 5 is 5x। 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 1 को किसी से भी डिवाइड करो उतना ही नंबर रहता है, तो x स्क्वायर into 2 is 2x स्क्वायर। प्लस का साइन था इसलिए प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल टू 0। अभी देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया, इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। तो दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो इट विल बिकम 2 minus 5x plus 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर इससे 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो बिकम 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, बट इट इज नॉट अरेंज। सबसे पहले हम लोग बड़े को लिखते हैं। देखो बेटा इक्वल टू के इस साइड में आप इसको इधर उसको उधर आराम से कर सकते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन इक्वल टू जब उस साइड इस साइड आता है तभी इसका साइन चेंज होता है। सो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को सामने लिखते हैं हम लोग, वो लिख देंगे, फिर माइनस 5x, फिर ये बेटा क्या है +2 है, तो +2 को इधर लिख देंगे इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x plus 2 equal to 0. Now this is question number 8. Again we have to do the same thing because एक डिवीजन का साइन नहीं है, so we have to take। अच्छा बेटा इसको ध्यान से देखिए, इसको पहले समझ लीजिए। मान लो आपके पास है 5 into x by y, इसका मतलब क्या हुआ, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच में साइन क्या है, कुछ साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। और ऑलवेज रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 5 will be multiplied by this, 1 will be multiplied by this, so इसको हम लोग लिखते हैं 5x by y। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, 2 into x plus 1 by x plus 2। अगर ऐसा दिया हुआ है, ये 2 मान लेते हैं, थोड़ा नीचे लिखा, ऐसे लिखा मीन्स द सेम, ये मल्टीप्लिकेशन है, नीचे 1 मानना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 2x plus 2 डिवाइडेड बाय x plus 2। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सो फर्स्ट नो प्रॉब्लम, एज इट इज उतार दो, प्लस मैंने अभी क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा बेटा, 6x minus 6 to the 12 डिवाइडेड बाय x minus 6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जब भी इस तरह का फ्रैक्शंस में आता है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आता है, ये दोनों देखो बेटा लीनियर इक्वेशन, राइट, x plus 2 इक्वल टू 0 मींस x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म में जब भी होगा उन दोनों को स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द एलसीएम, x plus 2 into x minus 6, ये हो गया इनका एलसीएम। अब इसको इन दोनों से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सर इसको इससे डिवाइड कैसे करेंगे, बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो सिंपली बेटा ऐसे जैसे होगा ना, x plus 2 x minus 6, वो बच्चों वाला डिवीजन मत करने जाना, डिवाइडेड बाय का साइन ऐसा लगाना, x plus 2। अब देखो ये पूरा इससे कट गया, बचा क्या, x plus 6, सो x plus 6 बच गया, डिवाइड करके जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, सो x minus 2 मल्टीप्लाइड बाय x minus 6। ठीक है, अब सेम इसको इन दोनों से डिवाइड करना है, तो x minus 6 कट जाएगा, x plus 2 बच जाएगा, इधर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, और x plus 2 इंटू ये 6x minus 12 इक्वल टू 1।
ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। x इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स माइनस सिक्स, फिर -2 इंटू एक्स माइनस सिक्स, ये दोनों हो गया प्लस का साइन प्लस। अब इधर आ जाओ, x इंटू इन दोनों के साथ x इंटू 6x माइनस 12 और ये +2 इंटू 6x माइनस 12, और नीचे बेटा क्या होगा, नीचे भी सेम होगा, x इन दोनों के साथ x इंटू एक्स माइनस सिक्स और ये +2 इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 1। So I am rubbing the question here. आप लोग नोट करते रहना, नहीं तो you will be missing out something. तो x इंटू एक्स कितना हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स 6x माइनस 2 इंटू एक्स, सो -2x माइनस माइनस प्लस 6 2 12 प्लस x इंटू 6x 6x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x up to 2 into 6 12 plus 12x, 2 into -12 is -24 divided by this whole thing, x into x x square minus x into 6 6x plus 2 into x 2x plus minus 2 into 6 12 minus 12 equal to 1। ठीक है बेटा, now we will be moving अब देखो इसमें रीअरेंज करना है बहुत। एक्स स्क्वायर पूरे में देखो क्या दिख रहा है, ये सब दिख गया, ये रहा एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर में इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, तो 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 1, 6 plus 1 7, so 7x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का चैप्टर क्लोज, वेरी गुड। नाउ सी 12x प्लस 12x माइनस 12x कट गए, प्लस माइनस माइनस 12 12 0, और माइनस माइनस इधर प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, x बड़े में क्या साइन माइनस तो माइनस। अब बचा क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इधर कितना है 12, इधर है -24, प्लस माइनस माइनस 24 से 12 क्या 12 बचा, लेकिन बड़े में क्या साइन है माइनस का, तो इसके आंसर में माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए माइनस प्लस माइनस, बड़े में क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिया, 4x 6 में से 2 गया 4 -12 इक्वल टू 1। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पूरा डिवीजन के लाइन में आ गया बेटा, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे इसको इससे, सो 7x स्क्वायर, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम नंबर, तो ये पूरा चीज वैसे का वैसे ही आ गया, और इधर भी ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब उतना ही आ जाएगा। अभी ट्रांसपोर्ट करना है, इधर पहले से 7x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बगल में x स्क्वायर आता है, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर -8x, इधर माइनस है बेटा, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर पहले से -12 है, इधर आके +12 हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सॉल्व इट, 7x स्क्वायर माइनस x, 7 minus 1 is 6, 6x स्क्वायर, बड़े में प्लस का साइन इसलिए आंसर में प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस, 8 minus 4 is 4x, बड़े में माइनस का साइन, 12 minus 12 plus 12 0, so 0। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है? वेट सर, लेट मी चेक वेदर देयर इज एनीथिंग कॉमन। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा, देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3x स्क्वायर, 2 3 are 6, 6 की जगह में ये लिख सकते हैं, -4 की जगह में क्या लिखते हैं 2 into x लिख सकते हैं, 2 2 4 4x, 2 3 6 6x स्क्वायर, एक ही चीज है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, यस सर 2 निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दो बाहर। अब बच्चों क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो ये बेटा 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। चलो इस पूरे को उठा के इधर लिख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। The last example of what? Of
कन्वर्टिंग दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से बेटा इधर एक डिवीजन का लाइन नहीं है, सो वी हैव टू टेक एलसीएम। मैंने क्या बताया था, दो लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट अवे उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, वो उनका एलसीएम होगा। तो ये इन दोनों का एलसीएम हो गया। अभी इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, ये x माइनस थ्री कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5। बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। ये जब इससे डिवाइड होगा, ये x माइनस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 3। ब्रैकेट के अंदर लिखना है x माइनस 3। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का साइन है। अभी बच्चों क्या करना है, लेट्स सॉल्व इट फर्दर। ये ब्रैकेट को खोलते हैं, x प्लस 5 माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 इक्वल टू 1/6। तो इधर देखिए x और x करते हैं, और 5 और 3 8 बन गया। इधर कितना आया, x स्क्वायर, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2x, बड़े में प्लस का साइन इसलिए प्लस, माइनस 50 इक्वल टू 1/6। अब क्या करना बेटा, आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये पूरा डिवीजन का साइन आ गया है। सो नाउ क्विकली वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनटू होगा और ये इससे होगा। सो पहले हम लोग इसको इनटू कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 8 इंटू 6। ये इंटू ये भी आप पहले लिख सकते हैं, या ये इंटू ये भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग x स्क्वायर वाला को साइड लिखेंगे तो सबको लाना पड़ेगा, यहाँ पर एक साइड लिखने से सिर्फ इसको उठा के लाना पड़ेगा। दैट इज द रीजन। सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 48, राइट। सो इसको उठा के हम लोग इस साइड लाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, कॉन्स्टेंट टर्म के बगल में कॉन्स्टेंट टर्म प्लस है, इधर आके बेटा कितना हो जाएगा, माइनस 48 इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 15 विल बी हाउ मच, 40 50 63, एंड माइनस बड़ा में माइनस का साइन, इसलिए कुछ कॉमन निकल रहा नहीं निकल रहा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसको जल्दी से हम लिख लेते हैं, x स्क्वायर plus 2x minus 63 equal to 0. Now when we have understood the first step, that is how to resolve any equation into a standard form of quadratic equation. We have seen 9 examples, by now you are 100% sure. So now let's start factorizing. Always remember, what is the standard form of quadratic equation? Sir, ax square plus bx plus c equal to 0. A is not equal to 0 and a, b, c are real number. सर अभी तो नींद से उठा के पूछोगे तब भी याद रहेगा सर, इतने बार पढ़ लिया, वेरी गुड। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, मींस उसमें एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है, इन दैट केस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा। ओनली इन दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस वी विल डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। अब मान लेते हैं ऐसे एक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या इसमें फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा? होगा सर, बिकॉज इसमें x स्क्वायर भी है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। क्या इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्या इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा? नहीं सर, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? x नहीं है। अंडरस्टूड? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। लेट मी टेक वन एग्जांपल। शुड वी टेक द एग्जांपल फ्रॉम हियर? यस। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन था।
-2 by x plus 2 plus 6x-2 by x minus 6 equal to 1। इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजॉल्व किए तो व्हाट वाज द आंसर? इट वाज 3x² minus 2x equal to 0। तो इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। सो इस टाइप के कोई क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? नाउ सी व्हाट इज कॉमन हियर। x² में 2x होता है, x इधर है, सो वी विल टेक x कॉमन। क्यों बेटा? x² का मतलब क्या होता है? x into x। अगर एक x हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो एक रह जाएगा, सो 3x रह गया क्योंकि एक x² में से हमने बाहर निकाल दिया माइनस 2x। इसमें से अगर x को बाहर निकाल देते हैं तो बच्चों क्या बच जाता है? ये। नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सर ये दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन है क्या? x equal to 0, क्या ये कोई लीनियर इक्वेशन है? इफ आई हैव टू आस्क यू x equal to 0 क्या ये लीनियर इक्वेशन है? x² equal to 0 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, बाकी कुछ हो या ना हो, b c 0 हो सकता है। सो x² दिख रहा है मतलब ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर 1 दिख रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। सो द बेसिक पर्पस ऑफ फैक्टराइजेशन इज टू ब्रिंग इट इन दिस फॉर्म, मतलब दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाना है। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म तोड़ काट के हम लोग वही करने वाले हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? अब देखो बेटा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। मान लो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। एक नंबर अगर 7 होता है तो दूसरा नंबर कितना होगा? कंपल्सरीली इट हैज टू बी 0 बिकॉज़ 7 zeros are तभी तो 0 होगा। नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0, तो ये नंबर कितना होगा? सर डेफिनेटली इट विल बी 0, 0 into 1000। सो इधर में ऐसे कुछ है, ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये पूरा नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा? या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, कोई तो एक 0 होना चाहिए, तभी तो वो मल्टीप्लाई होगा और वो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा एंड इट विल स्टैंड ट्रू। तो आइदर x is equal to 0 और 3x minus 2 is equal to 0। यहां तक लाने के बाद ये करना है, हर इक्वेशन को इस स्टेज तक लाना है। दैट इज द पर्पस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो x equal to 0, ये क्या फर्दर रिजॉल्व होगा? नो सर। और इसको क्या हम लोग इसमें से x का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। 3x को इधर रखना है, -2 को उस साइड ले जाओ, -2 उस साइड जाके 2 हो जाएगा प्लस, और x कितना हो जाएगा बेटा? 2, और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x कितना आया? 2/3। x कितना आया? 0। सो x के दो वैल्यू आए कि नहीं? x equal to 0 and x equal to 2/3। So these are the solution of this equation। तुमको दिया जाएगा सॉल्व करो, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x के दो वैल्यू आपको निकालना है। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? x is equal to 2। तो यही दो को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? These are the two roots of this quadratic equation। अब कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जहां पर x का फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल x² माइनस से 9 इक्वल टू 0। इसमें x गायब है तो इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना जिसमें बेटा x का फैक्टर नहीं होता, x² होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये कांस्टेंट टर्म हमेशा किसी का स्क्वायर होगा। मेक इट अ पॉइंट। अगर नहीं है तो आपने सॉल्व करने में कोई गलती किया है। इट हैज टू बी अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर, मतलब यहां पर या तो 1 आ जाए, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। या फिर यहां पर 4 आ जाए, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। या फिर यहां पर 3 का स्क्वायर आ जाए विच इज 9, या फिर यहां पर 16 आ जाए विच इज 4 का स्क्वायर, या फिर 25 आ जाए विच इज 5 का स्क्वायर, या फिर 6 का स्क्वायर आ जाए 36, या फिर 7 का स्क्वायर आ जाए 49। आपके इस चैप्टर में 49 तक ही है। तो
तो या तो यहाँ पर 9 होगा, या तो यहाँ पर 1 होगा, या तो 4 होगा, या फिर 16 होगा, या 25 होगा, या फिर मतलब कोई भी ऐसा नंबर होगा जो किसी का स्क्वायर बन सकता है। ठीक, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस लाइक 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 3 into 3 is 9। सो इसके जगह अब बेटा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ फॉर्म दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था यहाँ, यस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर बेटा a कितना है, x है, और b कितना है, 3 है, तो इसी फॉर्मूला में तोड़ देते हैं हम लोग। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। लो फिर से ये दो लीनियर इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गए, आपका काम डन। यह होता 90% ऑफ द जॉब। क्यों सर 90% कैसा हो गया, या तो फिर ये इक्वल टू 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा। तो हाउ वी विल राइट फ्रॉम हियर, आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 को सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 3 उस साइड जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा बेटा, माइनस 3 उस साइड जाके 3 हो जाएगा। तो x के दो आंसर क्या आ गए, ये आ गए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 3। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था बेटा, लिख के रखो। तो अभी हम इसको समझ में आ गया, जब टू टर्म्स के फॉर्म में होता है इट बिकम्स वेरी इजी। तो क्विकली लेट्स सी वन बाय वन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। 3y स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 160 माइनस 2y स्क्वायर। इसको जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में तोड़ा था तो कितना आया था बेटा, y स्क्वायर माइनस 36। क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, नो सर। क्या इसमें x है, नहीं है, तो डेफिनेटली इस साइड वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, किसी एक नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। सो 36 is square of 6, so we can write it like this, y square minus 6 square equal to 0। so a square minus b square का फॉर्मूला लगा दो, a plus b into a minus b। इसको दिमाग में एनग्रेव करके रखो बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये इक्वेशन काम आएगा। तो y plus 6 into y minus 6। अब देखिए फिर से ये दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, तो बस ये वेरी क्लोज टू द आंसर। आइदर y plus 6 is equal to 0, तो इसको जब सॉल्व करेंगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6, और y minus 6 is equal to 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, -6 उधर गया 6। सो देयरफॉर y equal to 6 and -6। These are the two roots of the given equation। मैंने बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो आंसर आएंगे, सो दिस आर द टू आंसर्स। क्या सर इससे ज्यादा आ सकता है, हो ही नहीं सकता। ये पहले हम लोग जिसमें दो दो टर्म है बेटा वो करते हैं। सो ये हम लोगों ने कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 2x plus 1 whole square plus x plus 1 whole square equal to 6x plus 47। Now before going further, let me tell you, ये आपका चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 to 9 क्वेश्चंस यही है। So now we are solving chapter 1.2 का फोर्थ पार्ट, जिसमें 21 क्वेश्चंस है। We are solving first 9 right away। तो बेटा इसको रिजॉल्व करके हम लोग क्या आया था सर, x स्क्वायर माइनस 9 आया था। मैंने बताया जब भी x का टर्म नहीं रहेगा तो ये डेफिनेटली किसी का स्क्वायर होगा। तो किसका स्क्वायर है बेटा, ये 3 का स्क्वायर है सर। तो इसको किस फॉर्म में तोड़ देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर ये 0 है या तो ये 0 है। सो लिखना है आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, x इक्वल टू -3 प्लस 3 इधर जाएगा -3, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x को इधर रखना है, -3 को साइड ले जाना है, तो वो 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका दो आंसर्स क्या क्या आ गया, द सॉल्यूशन आर -3 एंड 3।
So this is question number 2 of chapter 1.2 का fourth part. Now we will not do question number 3. See question number 4 और 2 दोनों सेम है, उसका ये फॉर्म, तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा. So question number 4, 3x minus 24 by x equal to x by 3. जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तो कितना आया था बेटा, x square minus 9 equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो को रिवाइंड कर करके आप देखिए. सो मैंने क्या बताया था, जब x नहीं रहेगा ये कांस्टेंट टर्म हमेशा किसी का स्क्वायर बनता है, तो ये 3 का स्क्वायर बन गया. तो आंसर क्या आया, x plus 3 into x minus 3 इक्वल टू 0. कहाँ से आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भूलना नहीं बेटा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में. तो आइदर आप क्या लिखेंगे, ये दोनों लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में आ गया, बस ये जॉब इज डन. आइदर x plus 3 is equal to 0, तो इससे क्या आएगा, x equal to minus 3 plus 3 उस साइड जाएगा minus 3, और x minus 3 is equal to 0, तो x कितना आ जाएगा, minus 3 उस साइड जाएगा 3 हो गया. तो x के दो वैल्यू क्या आ गया, सोल्यूशन क्या क्या है, सोल्यूशन है x equal to 3 and minus 3. ये दो रूट्स भी हैं. अब दो टर्म वाले आप कौन से क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या था बेटा, x by 3. ये आपका चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के ही सारे क्वेश्चंस हैं. इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मींस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में तोड़ेंगे, तो क्या बन के आता है बेटा, x स्क्वायर माइनस 36. अगेन इधर देखो x नहीं है, तो ये जो कांस्टेंट है किसी का स्क्वायर होगा. किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनता है बेटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0. जैसे दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गए, तो आपको लिखना आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इससे क्या आंसर आएगा, x विल बी इक्वल टू प्लस 6 उधर जाएगा माइनस 6, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा. x इक्वल टू माइनस 6 उधर गया 6 हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 एंड 6. ये दोनों इसका सोल्यूशन है, मींस ये दोनों इसका रूट्स है. अब लास्ट दो वाले क्वेश्चन नंबर 8 हमने पहले देखा था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को. माइनस 2x by 2, x प्लस 2 प्लस 6 x माइनस 2 बाय x माइनस 6 इक्वल टू 1. देखो क्वेश्चंस देखने में कितने बड़े लगते हैं, लेकिन जैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ के ले आते हैं, इट बिकम सो सिंपल. सो इधर क्या नहीं है बेटा, कांस्टेंट टर्म नहीं है, x स्क्वायर है और x है. तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्म में जैसे होता है दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है. तो यहाँ पर x कॉमन निकल रहा है, हम तो निकाल लेंगे. तो क्या बचा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. x स्क्वायर मतलब x इंटू x, एक x निकल गया, एक x बच गया, इसमें से x निकल गया, सिर्फ 2 बच गया. तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन. तो आइदर x will be equal to 0, ये तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली x का वैल्यू आ ही गया, और 3x minus 2 will be equal to 0. इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है. 3x पहले प्लस माइनस को हम लोग साइड ले जाते हैं, माइनस उस साइड जाएगा प्लस बन गया, और x will be how much, इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो x के दो वैल्यू क्या क्या आ गए बेटा, x equal to 0 and 2 by 3 are the solution of the given equation. ऐसा आपको लिखना है होगा, given equation. So now the final part of this chapter, that is splitting the middle term. ये ऐसा एक टॉपिक है, I have got so many comments, sir, splitting the middle term या factorization समझ में नहीं आता है. कई टीचरों का एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होता है, हमको कोई पर्टिकुलर मेथड बताया नहीं जाता है. तो as I promised, this channel assure you 100% guarantee that you will be understanding this topic and never ever forget it, because you are going to get some quick tricks and tips only and only in this channel. और आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, ना वो किसी टीचर ने आपको बताया होगा, ना किसी YouTube वीडियो में आपने देखा होगा. I can assure you this. लेकिन इसके बाद अगर ये कभी आप देखते हैं तो समझ लेना उन्होंने हमारा ही कॉपी किया है. Splitting the middle term. सबसे पहले first you need to understand we need to have a complete quadratic equation in order to split the middle term. Let's take question number 7. What is question number 7? 2 by
x square, this is 2 by x square minus 5 by x plus 2 equal to 0, right? When we have resolved it into standard form, what we have got, 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. Now, you have to understand that we have to split the middle term with x. मान लीजिए कोई इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इसको अभी तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजॉल्व नहीं किया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट पावर पहले आता है, फिर हाईएस्ट पावर पहले आता है, फिर x वाला टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, you have to see x in the middle. So in this equation x is very much in the middle. So let's move forward. इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, -5x को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है। Okay, so this -5 we have to break it in two such numbers, जिसको मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जितना है उसको बराबर हो जाए। सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है बेटा, a होता है, और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a क्या हुआ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, हियर इट इज हाउ मच 2, c कितना है, कांस्टेंट टर्म 2। तो -5 का ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसको प्लस या माइनस करने से -5 तो आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या आए, ac का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, दैट इज 4 के बराबर है। लेट मी रिपीट वंस मोर, -5 को या जो भी नंबर इधर रहेगा उसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि उन दोनों को प्लस या माइनस करने से -5 आ जाए, और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए। 4 कहां से मिला, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके जितना आए उतना जैसे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आ जाए। So how we are going to do, and what are the quick tricks? Let us see. सबसे पहले, before that, if we are doing addition, अगर किसी इक्वेशन में हम लोग को प्लस करना है, तो what are the possibilities? 3 plus 7 हो सकता है प्लस, यस सर। 3 minus 7 हो सकता है प्लस, नो सर। क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, प्लस 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 होता है, 3 plus 7 is 10। लेकिन इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, इट विल नेवर बी प्लस। -3 plus 7 क्या प्लस हो सकता है, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस नहीं होगा। क्या -3 minus 7 प्लस हो सकता है, माइनस माइनस इज प्लस। सो यस, either both the sign has to be minus or both the sign has to be plus in order to do addition. Always remember that, या तो दोनों नंबर प्लस होंगे या तो दोनों नंबर माइनस होगा एडिशन के लिए। और सब्सट्रैक्शन के लिए बेटा क्या होगा, देखो -3 plus 4, माइनस प्लस माइनस, यस पॉसिबल। 4 minus 3 is 1, बड़े में प्लस का साइन, इसका आंसर में प्लस का साइन। +3 minus 4 पॉसिबल, यस सर। प्लस माइनस 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 हो गया, 1 आया, बड़े में माइनस का साइन। -3 minus 4 पॉसिबल, प्लस हो माइनस होना, सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस होगा ही। +3 plus 4 क्या पॉसिबल है, प्लस होना माइनस होना, माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू डू सब्सट्रैक्शन ऑलवेज रिमेंबर देयर हैज टू बी ऑपोजिट नंबर्स, ऑपोजिट साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, तभी वो माइनस होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। नाउ रिमेंबर द क्विक ट्रिक which you will not get anywhere। ये इसको हम लोग को दो नंबर में तोड़ना है, जिसको प्लस या माइनस करने से कितना आ जाए बेटा, -5, और मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 4। फेयर एनफ। नाउ प्लस करना है कि माइनस करना है, वो तो सर करने के बाद पता चलेगा। नो, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। अगर कांस्टेंट टर्म के सामने जो साइन लगा हुआ है वो होगा। कांस्टेंट टर्म के सामने क्या है, प्लस, तो ये जो दो नंबर है इनको प्लस करके -5 आएगा। अब सर प्लस करके -5, याद करो प्लस, या तो प्लस प्लस होना चाहिए तब साइन भी प्लस आएगा,
या माइनस माइनस करके भी प्लस होता है, माइनस माइनस इज प्लस, लेकिन बड़े में जो साइन होगा वो बैठेगा। सो इन दिस केस बिग एंड स्मॉल नंबर, बड़े में हमेशा माइनस, छोटे में भी माइनस, नहीं तो माइनस प्लस होगा नहीं, ये होगा। नाउ लेट्स सी, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आना है बेटा 4, तो 4 आना है। तो 4 को हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 कितना जा होता है, 2 2 जा 4 होता है, और एक 4 कितना होता है, 1 4 जा 4 1 जा 4 होता है। तो 2 और 2 को प्लस करने से क्या 5 आएगा, नहीं आएगा सर। 4 और 1 को प्लस करने से क्या 5 आएगा, यस सर आएगा। सो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन, इट इज -4 एंड -1, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, बड़े में -6 आए इसलिए माइनस। एक एग्जांपल में आप लोगों को सब कुछ क्लियर नहीं होगा, वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। सो वी कैन राइट इजीली 2x², क्या बताया, -4x - 1x, हम लोग नहीं लिखते हैं तो इसमें -x + 2 = 0। ये कहां से आया, माइनस माइनस प्लस, राइट। 4 + 1 = 5, बड़े में माइनस का साइन, इसके जगह में मैंने ये लिखा। अब देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस। ये 3 वाले टर्म को हम लोग को 4 में तोड़ देना है। नाउ वी हैव 4 टर्म्स हियर, प्लस माइनस से जो अलग होता है उनको एक टर्म बोलते हैं। सो अभी 4 में से दो में से हम लोग को कॉमन निकालना है। मैंने बताया था कॉमन हर फेज में आप लोगों को निकालना है, टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग आउट कॉमन। तो बेटा यहाँ पर देखो 2x² मतलब 2 × x है, इधर 4x मतलब 2 × x। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा। 2x² को क्या ले सकते हैं, 2 × x, और -4 को 4x को क्या ले सकते हैं, 2 × x। अब इसमें से देखो 2x कॉमन निकल गया, इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा -2। फिर इसमें से अगर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है बेटा, इधर x, और इधर में से 2x कॉमन ले लेता हूँ तो 2 बच जाता है। हमेशा याद रखना, अगर दूसरा वाला टर्म शुरू होता है माइनस से तो माइनस कॉमन लेना जरूरी है। इधर आपको कोई नंबर नहीं जो कॉमन जा रहा है, और माइनस जब भी आप कॉमन लेते हो, मेक इट अ पॉइंट, नोट इट डाउन। माइनस जब भी आप कॉमन लेते हो साइन चेंज हो जाता है, मींस ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का ये एक मेथड है। जब भी आप माइनस कॉमन लोगे, प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसको कभी भी गलती मत करना। सुनाओ, आप इतना दूर तक सही चल रहे हो कि नहीं, कैसा पता चलेगा, इफ these two numbers are equal, तो अभी तक आपका ट्रेन पटरी में चल रहा है। तो बेटा अभी तक देखो दो और इक्वेशन आ गए। अब ये दो इक्वेशन में क्या कॉमन है, सर x - 2 x - 2 निकाल दो बाहर। तो बेटा यहाँ से x - 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, इधर 2x - 1 x - 2 बाहर चला गया = 0। अभी देखो ये फिर दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया कि नहीं बेटा, बताओ। अब क्या करना है, अभी बहुत इजी है सर, आइदर x - 2 विल बी = 0, तो इसमें से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -2 को उधर ले जाओ, 2 आ गया, x का वैल्यू आ गया, और 2x - 1 विल बी = 0। अब इसमें क्या करना है, 2x को इधर रखना है, माइनस प्लस को पहले उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस प्लस जाके +1 हो गया, और x इसके साथ मल्टीप्लाई है 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x का दो आंसर क्या है बेटा, x = 2 and 1/2। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है, और इसको क्या बोलते हैं, these are the roots also। what are the two roots of this quadratic equation, x = 2 and x = 1/2 are the two roots of this quadratic equation। now let's see question number 6, 10x - 1/x = 3। इसको जब हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजॉल्व किया था, क्या आया था बेटा, 10x² - 3x - 1 = 0। x बीच में है, फेयर इनफ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, एक को दो टुकड़ों में बांटना है। ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि उनको प्लस या माइनस करने से -3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से कितना है बेटा, a और c को मल्टीप्लाई करके जितना है, a इधर कितना है 10, c कितना है, साइन के साथ बोलना -1, तो a × c कितना हो गया बेटा, 10 × -1 -10। तो इनको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिसको प्लस या माइनस करने से तो -3 आए, बट मल्टीप्लाई करने से -10 आ जाए। तो सबसे पहले
इन दो नंबरों को क्या करना है, मैंने बताया था आंसर इज इन द इक्वेशन ओनली। इन दोनों नंबर को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। वेरी गुड। और बड़े में क्या साइन लगेगा बेटा, माइनस। माइनस कब कब होता है, माइनस प्लस होने से माइनस होता है या प्लस माइनस होने से माइनस होता है। अगर बड़ा माइनस है तो छोटा प्लस होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए ये दो डब्बे में नंबर क्या आएगा, अभी हम लोग को 10 को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है। हमेशा 10 को तोड़ो, सबसे छोटे नंबर से शुरू करो, स्प्लिट करना। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अभी 10 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5, फेयर एनफ, 2 5 जा 10। अब 5 और 2 को प्लस या माइनस करने से 3 आएगा, माइनस करने से 5 minus 2 is 3। यस सर। तो बड़े में मैंने क्या बताया था, माइनस का साइन है तो -5 प्लस 2। तो अब इसको कैसे लिख देंगे बेटा, बहुत सिंपल, 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस -3x की जगह में मैंने -5x प्लस 2x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 minus 2 3 होता है, बड़े में माइनस का साइन, इसके जगह में भी नहीं लिखा। क्यों किया ये हम लोगों ने, ताकि ये 3 से बढ़ के 4 हो जाए। नाउ देयर आर 4 टर्म्स। 4 टर्म्स किस लिए, ताकि हर दो से हम लोग जोड़े में से कॉमन बाहर निकालें। अब बेटा 10x² और 5x से क्या कॉमन निकलता है, देखो 10x का मतलब क्या हुआ, 5 into 2x², राइट। तो इसमें से मैं अगर 5x कॉमन ले लेता हूँ, 10 में से 5 निकाला, कितना बचा, 5 2 जा 10, और x² में से x निकाल दिया, x बचा माइनस 5x पूरा का पूरा अगर बाहर निकाल दो तो कितना बचेगा, 0 मत लिखिए गलती से, इट इज 1। 5x 1 जा 5x, ठीक है। इसको अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूँ तो यही आना चाहिए, कई बच्चे 0 लगा देते हैं। तो 5x minus 1 प्लस, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन निकालना है। तो 1 कॉमन निकाला तो कितना बचा, 2x minus 1 इक्वल टू 0। यही अगर माइनस कॉमन होता, अगर इधर माइनस होता तो हम लोग -1 कॉमन निकालते। -1 कॉमन निकालने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब बेटा बताओ, यहां तक आप सही जा रहे हो कि नहीं, कैसा पता चलेगा, अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाला चीज दोनों सेम है, मतलब एज ऑफ नाउ यू आर डूइंग द इक्वेशन करेक्टली। सो नाउ इन दीज टू इक्वेशन व्हाट इज कॉमन, 2x minus 1 is common, so what is left out, 5x। इसमें से 2x minus 1 निकाल दो, क्या बचा बेटा, 1। now see, it is multiplication of two linear equation, so now it is very easy, either ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। so what we will write, either 2x minus 1 will be equal to 0, इसको सॉल्व करो, 2x माइनस उधर जाएगा बेटा प्लस 1, और x मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये एक आंसर आ गया। और 5x plus 1 इक्वल टू 0। पहले क्या करते हैं, प्लस माइनस वाले को साइड भेजते हैं, तो प्लस 1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड। तो x का क्या दो आंसर आएगा बेटा, 1/2 एंड -1/2, 5। These are the solution of the quadratic equation and it is the root also. Now let's see question number 9. Question number 9 क्या आया था जब उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, इट वाज स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आया बेटा, x² plus 2x minus 63 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, इस बीच वाले नंबर को प्लस 2x को ऐसा तोड़ना है कि इसको प्लस या माइनस करके तो 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके कितना आए, a इंटू सी। a कितना है इधर 1 इंटू -63, मतलब मल्टीप्लाई करके -63 आना है, और प्लस या माइनस करके 2 आना है। ठीक है, हाउ वी विल डू इट, मैंने बताया जिसको मल्टीप्लाई करके आना है उसको पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 से तो जाता नहीं है, 3 के टेबल में 21 था, फिर 3 7 था एंड 7 1 था। सो 63 की जगह हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 7। अभी देखते हैं, 3 3 जा 9 और 7, प्लस या माइनस करने से 2 आता है, हाँ सर 9 minus 2। लेकिन क्विक ट्रिक में मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को, ये दो नंबर क्या होगा, माइनस होगा, और बड़े में क्या साइन होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, राइट। सो बड़े नंबर में बड़ा नंबर क्या है 9, छोटा नंबर। आई होप दिस क्विक ट्रिक इज बीइंग यूजफुल टू यू। तो लिख देते हैं इसको, x² plus 9x minus 7x minus 63 इक्वल टू 0।
4 टुकड़ों में बढ़ गया, 2 2 से हम लोग क्या लेना है कॉमन। पहले में से x निकाल दो, x स्क्वायर में से x गया बेटा x बचा प्लस 9x है, x चला गया 9 बच गया। अभी पहले अगर माइनस है तो माइनस को पहले लिख दो। 7 इसमें क्या 7 है, हाँ सर 7 × 9 है, 7 9 63, तो इसमें से हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे। -7 कॉमन निकाला, माइनस बाहर निकल गया 7, तो क्या बचा x। और मैंने क्या बताया था, अगर माइनस कॉमन लेते हैं हमेशा साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस 7 चला गया 63 में से, तो कितना बचा बेटा 9 बच गया। हमेशा कॉमन मल्टीप्लिकेशन से निकलता है। तो एज ऑफ नाउ आर वी डूइंग राइट? यस, बिकॉज दीज टू आर सेम। सो अब इन दो इक्वेशन में बेटा क्या कॉमन है, x + 9 कॉमन है, निकाल लेते हैं। तो क्या बचा, x बच गया, इधर क्या बचा -7। So now it is in the form of multiplication of two linear equation. तो अब क्या करना है, either x + 9 is equal to 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा +9 उस साइड जाएगा -9, और x - 7 is equal to 0, इससे क्या वैल्यू आएगा, x equal to -7 हो जाके 7 हो जाएगा। So x का क्या क्या वैल्यू आया बेटा, -9 and 7। So now the last question of the day, question number 3, x - 7 x - 9 equal to, इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया था, x² - 16x - 132 equal to 0। तो सबसे पहले इसको हम लोग को दो नंबर में तोड़ना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके वो दो नंबर का कितना आना चाहिए, c a × c के बराबर। a कितना है बेटा इधर 1 और c कितना है -132, तो कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करके -132। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस या माइनस करके -16 आना चाहिए। अभी प्लस होगा या माइनस होगा, मैंने बताया था इनपुट ट्रिक, माइनस है तो माइनस होगा, राइट। माइनस और बड़े में क्या साइन होना चाहिए बेटा, माइनस। सो माइनस और माइनस में एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होना, माइनस प्लस तभी माइनस होगा। तो बड़े नंबर में माइनस लगेगा, छोटे वाले में प्लस लगेगा। So now we will be splitting this -16 into such numbers as per the quick trick कि उनको माइनस करके कितना आना चाहिए, -16 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके -132। बड़े में क्या साइन होना चाहिए, जो x का फैक्टर में रहता है वो साइन होना चाहिए। So let's quickly find out what will be the answer. So we can write 132 as 2 × 2 × 3 × 11। Now see 2 2 is 4, 3 × 11 33, 33 में से 4 माइनस करने से क्या सर 16 आएगा, नो सर, लेट्स टेक सम अदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 2 3 is 6, 11 2 is 22, 22 - 6 is 16, so this is our right choice, 22 and 16 6, so 22 and 6। so बड़ा में क्या होना चाहिए बेटा, माइनस, so माइनस में 22 प्लस में 6, so we have to write it here like this। So now we have to write this as x² - 22x - 6x, sorry plus 6x - 132 equal to 0। अभी ये 3 से 4 हो गए, we have to take common from both of this। Here सिर्फ x is common, so x will go out, x - 22। इधर बेटा कितना कॉमन है, +6 कॉमन निकल रहा है, 6 इसमें से 6 चला गया, x बचा। क्या इसमें से 6 है, यस सर, 6 × 22 into था 132, तो 6 बाहर निकल गया, तो बेटा कितना बचा, -22 equal to 0। As of now we are doing right or wrong, this and this is correct, so we are doing right। So अब इन दोनों इक्वेशन में बेटा क्या कॉमन है, x - 22, we will take it out। क्या बचा इधर, x, इधर क्या बचा, +6। So now this is the multiplication of two linear equation, very easy to solve from here। Either x - 22 will be equal to 0 or x will be equal to 22 or x + 6 will be equal to 0। so यहाँ से इसका वैल्यू क्या निकलेगा बेटा, -6। so what is the solution, x equal to 22 and -6। so बेटा with this we have solved chapter 1.2 का 4 का 1 से लेके 9। tomorrow we will be seeing 10 to 21 and the chapter will be over and you will be getting 3 marks। I'm sure you have liked this video. If you have liked it, definitely give it a thumbs up
and don't forget to subscribe and press the bell icon so that next time whenever I upload a video straight away goes to you. With this, I will end this video here. Take care. Bye. God bless.